Humerus comes from a Latin word which means upper arm. This is the longest bone of our upper limb, right? The correct anatomical position of this bone, this is the head of the humerus, and it should be medially placed because it's going to articulate with the glenoid cavity of our scapula to form the glenohumeral joint, right? So this should be placed medially, and if you place this medially, now the second important point is that if you see this posterior side, then on the posterior side there is only one fossa, whereas on the anterior side we you will see two fossas, right? तो अगर आपके पास एंटीरियर और पोस्टीरियर का किस तरह से आपको पता लगेगा कि एंटीरियर साइड पे आपको दो फोसास नजर आएंगे, पोस्टीरियर साइड पे एक ही फोसा नजर आएगा, द ओलेक्रोन फोसा, राइट? सो this will be anterior side, and this head will be placed medially, so you will easily be able to know कि ये आपके पास right side की है या left side की humerus है. Now this humerus is of your right side, right? Because आप इस तरह से इसको नहीं रख सकते, क्योंकि आप इस तरह से रखोगे तो बेशक हेड तो आपके पास मीडियली प्लेस हो सकता है, बट दिस ओलिक्रॉन फोसा will come anteriorly, right? And that is wrong. After completing the side determination, let's start with the different anatomical marking. आपको पता है कि लॉन्ग बोन्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आपके पास अपर एंड होता है, यू हैव योर शाफ्ट, एंड देन यू हैव योर लोअर एंड. Starting with the upper end में this round structure, this round spherical like structure, this is your neck, the head of your humerus, right? And it is going to articulate, as I told you, with the scapula, with the glenoid cavity of your scapula to form the glenohumeral joint, and that joint is a ball and socket joint. Now there is three terminologies about the neck of these this upper part. You have your anatomical neck, surgical neck, and morphological neck. The anatomical neck, when this round spherical like ball like structure जैसे ही वो आपके पास humerus के साथ मिलेगी, then this is your anatomical neck, right? Anatomical neck. Now the surgical neck, जैसे ही आपके पास this is your greater tubercle and this is your lesser tubercle. Lesser tubercle आपके पास किस तरह से पता लगेगा? Then it will be more anteriorly, और जो आपके पास ग्रेटर टुबरकल होगा वो आपके पास मोस्ट लैटरल बोनी प्रोसेस होगा, जो कि आप पालपेट भी कर सकते हो, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हेयर, right? So this small tubercle, this is your lesser tubercle and that's your greater tubercle, right? And it's going to give articulation, give insertion to a number of muscles, right? For example, आपके पास greater tubercle वाली साइड पे आपके पास तीन इंपॉर्टेंट मसल्स ने इंसर्ट होना है. You have supraspinatus, infraspinatus and teres minor, right? And lesser tubercle पे भी of course आपके पास सबस्कैपुलरिस मसल जो है वो आपके पास इंसर्ट हो रहा होगा. नाउ जैसे ही आपके पास ये दो ट्यूबरकल्स खत्म होते हैं, तो इन्हीं ट्यूबरकल के नीचे वाली साइड पे दिस इज योर सर्जिकल नेक. Why it is called the surgical neck? Because this is the common site of your fracture of your humerus, right? And this surgical neck of your humerus is also very important, क्योंकि आपके पास यहाँ पर axillary nerve and your posterior circumflex humeral artery जो आपके पास इस सर्जिकल नेक के अराउंड जो है आपके पास वाइंड करेंगे, राइट? नाउ बिकॉज दिस इज दिस कॉमन साइट ऑफ योर फ्रैक्चर ऑफ योर ह्यूमरस, देन आपके पास अगर यहाँ इस साइड पे आपके पास सर्जिकल नेक वाली साइड पे अगर कोई फ्रैक्चर होता है, राइट, तो आपके पास यहाँ पर योर एक्सिलरी नर्व कैन गेट डैमेज, एंड दैट एक्सिलरी नर्व इज गोइंग टू सप्लाई विच मसल्स? योर डेल्टॉइड एंड योर टीरीज माइनर. तो आपके पास डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आपके पास उस हिसाब से आ सकती हैं. डेल्टॉइड की पैरालिसिस आपके पास हो सकती है, एंड योर टीरीज माइनर की पैरालिसिस आपके पास देखने को मिल सकती है. The third terminology is your morphological neck, or it is also called your epiphyseal line or epiphyseal plate. अगर तो आपके पास epiphyseal plate or the growth plate, आपको पता है that epiphyseal plate or the growth plate is made up of your hyaline cartilage, as you can easily appreciate right over here. And during childhood, it's very important for the longitudinal growth of, in order to lengthen your long bones, right, longitudinally. उसकी लेंथ में इजाफा करने के लिए दैट ग्रोथ प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपके पास वो ग्रोथ प्लेट आपके पास ऑसिफाई कर जाती है, और उस साइड पे आपके पास एपिफिजियल लाइन आ जाती है, राइट?
एंड दैट्स योर मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ योर ह्यूमरस, क्योंकि आपके पास उसी पार्ट पे मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्ग बोन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अपर पार्ट, शाफ्ट एंड योर लोअर पार्ट। तो आपके पास अपर पार्ट और शाफ्ट के दरमियान में ही वो लाइन होती है, दैट्स वाई इट्स द मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ योर ह्यूमरस। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ दैट्स योर मोस्ट लैटरल पार्ट, दैट इज योर ग्रेटर ट्यूबरकल, दैट्स योर लेसर ट्यूबरकल। इन दोनों के दरमियान में यू कैन इजीली अप्रिशिएट अ सेल्कस, दैट्स योर इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस। नाउ इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस के आपके पास, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपके पास यहाँ पे इसके तीन लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। मीडियल साइड पे दैट विल बी योर मीडियल लिप, लैटरल साइड पे लैटरल लिप होगा, और नीचे आपके पास फ्लोर होगा। नाउ डिफरेंट मसल्स आर गोइंग टू बी इंसर्टेड राइट ओवर हियर। इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस में आपके पास तीन मसल्स ने आपके पास इंसर्ट होना है, लेटिसिमस डोर्साई, टीडीज माइनर एंड पेक्टोरालिस मेजर मसल। जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होगा वो आपके पास लैटरल लिप ऑफ योर इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस में इंसर्ट हो रहा होगा, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हियर. The latissimus dorsi is going to be inserted on the floor, whereas your teres major is going to be inserted on the medial lip of your intertubercular sulcus. Right, so these were your three lips, two lips, medial lip, lateral lip, and the floor of your intertubercular sulcus. Now, this intertubercular sulcus is also called as your bicipital groove or bicipital sulcus. अच्छा, यहाँ से आपके पास योर टेंडन ऑफ योर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है। बाइसेप ब्रेकिया आपके पास, और उसका जो लॉन्ग हेड था वो आपके पास ओरिजिनेट हो रहा होता था फ्रॉम द एरिया था सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। फ्रॉम दैट सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल आपके पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है का जो टेंडन है वो आ रहा होता है और यहाँ से इन दोनों के दरमियान से गुजरता है, राइट। एंड this meaning to say this groove contains the tendon of your long head of bicep brachia, and in order to hold that tendon in place आपके पास यहाँ पे एक दोनों के दरमियान में आपके पास एक लिगामेंट होता है, we have transverse humeral ligament, that's also very important, right? So ये आपके पास सारे के सारा पार्ट था। Now this that posteriorly is it appreciated right over here, that's your greater tubercle जो कि काफ़ी बड़ा है, जबकि lesser tubercle जो है बहुत छोटा सा है। Coming towards the shaft of your humerus, अच्छा, shaft of humerus की बात करें, then shaft of the humerus has three borders and three surfaces. Anterior side पे आपको बस anterior border नजर आएगा आपको, as you can easily appreciate right over here. Medial side पे medial border होगा और lateral side पे आपके पास lateral border होगा। अच्छा, तीन surfaces आपके पास कौन सी हैं? ये anterior border के आपके पास जो medial side पे है, that's your anteromedial surface, and anteromedial surface is just very smooth, and that's your anterolateral surface. Now anterolateral surface has some tuberosity right over here, is this roughened area. This is for the insertion of your deltoid, right, and that's the deltoid के लिए आपके पास insertion है, so that is your deltoid tuberosity. और इसी के आपके पास deltoid tuberosity के ही आपके पास medial side पे, मीनिंग से medial side पे आपके पास जो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया है उसका ओरिजिन आपको नजर आ रहा होता है, एंड द इंपॉर्टेंट इंसर्शन कोरैकोब्रेकियालिस का इंसर्शन आपको देखने को मिल रहा होता है ऑन दैट पार्ट, राइट। और इसके नीचे फिर आपके पास कोरैकोब्रेकियालिस को की मसल जो है अब इंसर्ट हो गया यहाँ पे, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो है यहाँ पे आपके पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर योर मस्कुलोकुटेनियस नर्व, राइट। तो ये आपके पास एंटीरोमीडियल एंड दैट्स योर एंटीरोलैटरल सरफेस। अच्छा, पोस्टीरियर साइड पे दैट्स योर पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे इस बोन में आपके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट यू कैन इजीली अप्रिशिएट इन दिस पिक्चर, दैट्स योर ग्रूव फॉर रेडियल नर्व और रेडियल ग्रूव। अच्छा, जो रेडियल नर्व है वो आपके पास एंटीरियर साइड से पास करती हुई पोस्टीरियर साइड पे आ जाती है। जो आपके पास एक्सिलरी नर्व थी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो थी आपके पास, जो कि यहाँ पर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में जो आपके पास वाइंड हो रही थी, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर क्वाड्रेंगुलर स्पेस। जो लोअर ट्राइंगुलर इंटरवल से आपके पास इन योर स्कैपुलर, as you can easily picture right over here in your scapular different spaces, वहाँ से आपके पास रेडियल नर्व एंड योर प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी आ रही थी, और वो आपके पास एंटीरियर साइड से भी पोस्टीरियर साइड पे आ जाती है, और वो आपके पास यहाँ से पास करती है फ्रॉम दिस रेडियल ग्रूव, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर योर शाफ्ट ऑफ योर ह्यूमरस। कमिंग टू द लोअर पार्ट ऑफ योर ह्यूमरस। अच्छा, लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस में वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट फोसास, राइट, एंड दीज फोसास आर वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले हम फोसा के बारे में बाद में बात करते हैं. दिस राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज योर कैपिटुलम, राइट. दिस राउंड शेप लाइक structure, it is from a Latin word which means little head, right, and it's going to articulate with the head of your radius. Now this is your trochlea, right? This trochlea means pulley, and it is going to articulate with the trochlear notch of your ulna. This is your medial side पे, तो this is your medial epicondyle, this is your lateral epicondyle. अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास this easily picture right over this sharp line, this is your supracondylar line. Lateral side पे lateral supracondylar line, medial side पे medial supracondylar line, राइट. जो मीडियल बॉर्डर था वो नीचे आके फिर आपके पास यहाँ पे शार्प हो गया, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, एंड इट्स गोइंग टू गिव ओरिजिन टू डिफरेंट मसल्स. आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल है दैट हैज़ द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, और लैटरल साइड पे आपके पास जो लैटरल एपिकोंडाइल है दैट हैज़ योर कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन. और यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे किसी पार्ट का किसी की इन्फ्लेमेशन हो जाए देन आपके पास गोल्फर्स एल्बो या फिर तो आपके पास टेनिस एल्बो आपको देखने को मिल रही होती है, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हेयर. That's very important anatomical landmark, and you can easily palpate these. Medial epicondyle को तो आप, क्योंकि ये ज़्यादा projected है from the towards the medial side, तो आप easily इसको palpate कर सकते हो, ठीक है. You can easily palpate it. जो lateral epicondyle है, it's little bit harder to palpate than the medial epicondyle. अच्छा, 3 फोसास की हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले posterior side पे, that's your olecranon fossa. Now, olecranon fossa posterior side पे, it is large, right, and it has deep depression. अच्छा, जब एक्सटेंशन होती है ना आपके पास एल्बो की, तो जो ओलेक्रोन प्रोसेस है ना अल्ना का, वो इस फोसा के अंदर फिट कर रहा होता है, राइट. सो इट प्रिवेंट्स द ओलेक्रोन फ्रॉम ब्लॉकिंग फर्दर एक्सटेंशन, ताकि मजीद एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म ना हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो पोस्टीरियर साइड पे यू हैव ओलेक्रोन फोसा दैट रिसीव ओलेक्रोन ड्यूरिंग ओलेक्रोन ऑफ योर अल्ना ड्यूरिंग एक्सटेंशन. Now anteriorly you have two fossas. रेडियल साइड पे मतलब के लैटरल साइड पे आपके पास रेडियल फोसा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियल साइड पे आपके पास कैपिटुलम है दैट इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद योर रेडियस, तो यहाँ से आप इसको रेडियल फोसा याद रख लो. और यहाँ पे आपके पास कोरोनॉइड फोसा होगा. कोरोनॉइड वहाँ पे अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस से याद रख लो. अच्छा, जो आपके पास रेडियल साइड पे जो सबसे पहले जो आपके पास कोरोनॉइड फोसा है राइट ओवर हियर मीडियल साइड पे above this trochlea, this coronoid fossa is on the anterior surface of your distal humerus. It lies above your trochlea, and during flexion of elbow, तो आपके पास जो coronoid process है अल्ना का, right, it fits into this fossa. तो during extension, olecranon process of the ulna was fitting in the olecranon fossa. During flexion, the coronoid process of your ulna was fitting in your coronoid fossa, and this radial fossa, जब आपके पास जब फ्लेक्शन कर रहे होते हो एल्बो की, तो आपके पास जो हेड ऑफ रेडियस है इट इंटर्स इनटू दिस फोसा, राइट, एंड इट प्रिवेंट्स ऑफ कोर्स द फर्दर फ्लेक्शन ऑफ योर एल्बो. सो दैट्स समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये आपके पास सारी डिफरेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, एनाटॉमिकल important points है आपके पास ह्यूमरस के. I hope you like this video. So yeah, I see you guys in the next video.